Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, under which Indian law it is illegal to discriminate against a person based on their caste? Indian Penal Code 1860, Right to Information Act 2005, SC and ST Prevention of Atrocities Act 1989 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955। किस भारतीय विधि के तहत किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी है? भारतीय दंड संहिता 1860, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 या हिंदू विवाह अधिनियम 1955। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, SC and ST Prevention of Atrocities Act 1989. Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 Act aims to prevent atrocities against individuals belonging to scheduled caste and scheduled tribes. It provides for special courts and exclusive special courts for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of the victims of such offences. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार को रोकना है। यह ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए और ऐसे अपराधों के पीड़ितों की राहत एवं पुनर्वास हेतु विशेष न्यायालयों एवं विशिष्ट विशेष न्यायालयों का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which fundamental right guaranteed by the Indian Constitution encompasses the right to life and personal liberty? Article 14, Article 15, Article 19 और Article 21। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 21। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। Article 21 of the Indian Constitution enshrines the right to life and personal liberty. It states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. This fundamental right has been interpreted extensively by the Indian judiciary to include various aspects such as right to live with dignity, right to privacy, right to shelter, right to health, and right to a clean environment. It serves as a cornerstone of individual freedoms and ensures protection against arbitrary state actions. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय न्यायपालिका द्वारा इस मौलिक अधिकार की व्यापक रूप से व्याख्या की गई है, जिसमें सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला के रूप में कार्य करता है और राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करता है। Next question is, according to the Indian Contract Act 1872, which of the following is not a valid consideration for a contract? A promise to perform an act, a promise to refrain from doing an act, a promise to donate to a charitable organization, or a promise to pay an illegal debt? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अनुबंध के लिए वैध प्रतिफल नहीं है? किसी कार्य को करने का वचन, किसी कार्य को करने से विरत रहने का वचन, किसी धर्मार्थ संगठन को दान देने का वचन या अवैध ऋण भुगतान का वचन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अ प्रॉमिस टू डोनेट टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी धर्मार्थ संगठन को दान देने का वचन। According to the Indian Contract Act 1872, consideration is an essential element of a valid contract. It has been defined under Section 2, Clause D of the Indian Contract Act 1872. Consideration refers to something of value given or promised by one party to the other in exchange for something else. While a promise to perform an act or to refrain from doing an act can be valid considerations, a promise to donate to a charitable organization is generally not considered valid because it lacks the element of quid pro quo, that is something given or done in return. A promise to pay an illegal debt is also not a valid consideration as it is against public policy and legality. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार प्रतिफल एक वैध अनुबंध का एक अनिवार्य तत्व है। इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 खंड डी के तहत परिभाषित किया गया है।
प्रतिफल से तात्पर्य एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को किसी अन्य वस्तु के बदले में दी गई कोई मूल्यवान वस्तु से है, जबकि किसी कार्य को करने या किसी कार्य को करने से विरत रहने का वचन वैध विचार हो सकता है। किसी धर्मार्थ संगठन को दान देने का वचन आमतौर पर वैध नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें क्विड प्रो क्वो के तहत का अभाव होता है, यानी बदले में कुछ दिया या किया जाता है। अवैध ऋण का भुगतान करने का वचन भी एक वैध विचार नहीं है, क्योंकि यह सार्वजनिक नीति और वैधता के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of the Code of Criminal Procedure empowers a magistrate to issue a search warrant for the persons wrongfully confined? Section 93, Section 94, Section 97 और Section 100। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा एक मजिस्ट्रेट को गलत तरीके से कैद किए गए व्यक्तियों के लिए तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार देती है? धारा 93, धारा 94, धारा 97 या धारा 100? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 97। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 97। Section 97 of the CRPC empowers a magistrate to issue a search warrant for the purpose of finding a person who is suspected to be wrongfully confined. This section comes into play when there is a reason to believe that a person is being unlawfully held against their will. The warrant issued under Section 97 authorizes the police or any other authorized person to enter any place and search for the person wrongfully confined. The search warrant issued under this section must specify the person to be searched for and the place to be searched. CRPC की धारा 97 एक मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार देती है जिस पर गलत तरीके से कैद किए जाने का संदेह है। यह धारा तब लागू होती है जब यह मानने का कारण हो कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध गैर कानूनी तरीके से रखा जा रहा है। धारा 97 के तहत जारी वारंट पुलिस या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति को किसी भी स्थान में प्रवेश करने और गलत तरीके से कैद किए गए व्यक्ति की तलाश करने का अधिकार देता है। इस धारा के तहत जारी किए गए तलाशी वारंट में उस व्यक्ति और तलाशी की जाने वाली जगह का उल्लेख होना चाहिए। द लास्ट क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा applies between co-plaintiffs, between co-defendants, both A and B, or neither A nor B. रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू होता है सहवादियों के बीच, सहप्रतिवादियों के बीच, A और B दोनों, या ना तो A और ना ही B. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ A and B. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, A और B दोनों। Res judicata is a legal principle that prevents the same parties from litigating again on the same cause of action, which has already been finally decided by a competent court. Section 11 of the Code of Civil Procedure 1908 lays down the doctrines of res judicata. Res judicata is applicable between both co-plaintiffs and co-defendants. Res judicata एक कानूनी सिद्धांत है जो उन्हीं पक्षों को कार्रवाई के उसी कारण पर दोबारा मुकदमा करने से रोकता है जिसका अंतिम निर्णय पहले ही एक सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को निर्धारित करती है। रेस जुडिकाटा सहवादी और सहप्रतिवादी दोनों के बीच लागू होता है। बिफोर वी रैप अप, हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। Which of the following articles of the Indian Constitution empowers the Parliament to make law on the subject mentioned in the state list? Article 245, Article 249, Article 251 और Article 253। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 251 या अनुच्छेद 253? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।